Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay Special and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with this video. In this video, I have taught you grammar which will help you fetch 10 marks. 10 मार्क के ग्रामर में जो इंग्लिश में आपको मिलने वाले हैं, मुझे आपको बताना है। यहाँ पे मैंने हर एक ग्रामर का जो कॉन्टेक्स्ट है इतना इजीली आपको सिंप्लीफाई करके दिया है कि एग्जाम में आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ाया है वो आपको डेफिनेटली याद रहने वाले हैं। मेक श्योर करना, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और उसी के साथ ये हर स्टैंडर्ड में ग्रामर तो कभी बदलने वाला है नहीं, राइट। ग्रामर 5th में भी वही था, 9th में भी वही है और 10th में भी वही रहेगा। तो ये हर स्टैंडर्ड के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। मेक श्योर करना कि आप ये जो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इस वीडियो के थ्रू, आप उसको एक बार ही बुक में लिख देते हो आपके ग्रामर के, एंड उसको टोटली रिवाइज करते रहना है आपको कि आप उसको भूले नहीं। And with this, we start with this easy and simple grammar video. As you can see, the very first question asked to you is write any two compound words. Which words they have asked you to write down? Compound words. Compound words, yes? Yes. Tell me two compound words. Cupcake. Cupcake, Amusement park. Football. cupcake and notebook. Yes or no? Yes. Notebook. Notebook. Say one more. Sunflower. Can we write watchman? Yes. Yes or no? Yes. Is it clear? Yes. Second question. Find out two hidden words of minimum 4 letters each from the word perhaps. Perhaps is the word. Yes or no? Yes. So your answer for perhaps will be what? Haps. No, there is no word called haps. Come on, tell me very quickly. Perhaps. So first word will be shape. 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 Yes. Wraps. Very good. Raps. Wraps. One more. We can write down spear. 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 Yes. And rape. Rape. Yes. This all are the words which you can write down. Yes. तो लास्ट वर्ड के पहले आप क्या लिखोगे? And. Yes. You said paper. Paper. Yes. Is paper a word? Yes. Which can be used? Yes. So you can write down any two words out of the given words. Right? The third question is make a meaningful sentence of your own using the phrase like a rat in the corner. Like a rat in the corner. आपको क्या बनाना है? इसका make sentence बनाना है। तो like a rat in the corner आपको कैसे यूज करना है इसको? सेंटेंस। कोई भी चीज़ जो जाके like a rat in the corner मतलब कोने में जाके छिप जाए, तो कैसे आप उसको बोलेंगे? The boy is sitting like a rat in the corner after found guilty. After found guilty. आपको स्टेटमेंट रीजन जो सेंटेंस है आपको कंप्लीट करना है। जब उसका गुनाह पकड़ा गया, जब वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है, तो वो चूहे के जैसा कोने में जाके बैठ चुका है। Yes. My sister hides like a rat in the corner after hearing the dog barks. किसी किसी को डर रहता है ना, कुत्ते की भौंक का आवाज़ सुनते ही डर जाते हैं और जाके छुप जाते हैं। Yes or no? After hearing the thunder sound, बिजली गिर रही है, बिजली की आवाज़ सुन के वो कोने में जाके छुप गई। Yes or no? Yes. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक न्यू सेंटेंस। My dog hides like a rat in the corner after hearing the firecracker sound. The firecracker, what sound does it make? Bursting sound, है ना? पटाखा फूटता है ना? Bursting sound. ये लिख दिया आपने? After hearing the firecracker sound. क्या था क्वेश्चन? क्या था आपका? Like a rat in a that you have to underline. Understood or not? Yes. Spot the error. गलती को पहचानो और rewrite मतलब वापस से उसको सुधार के लिखो। Can you please tell me what you just hears? What you just hears आएगा क्या? No. Heard.
what you just heard. Yes or no, what you just heard. Fourth question में we will write down. पूरा लिखना पड़ेगा ना सेंटेंस, क्या सिर्फ इसको सही करने का है? No, full we have to write. Can you please what you just heard? What you just इतना क्लियर हो गया आपको? Any more doubts you have? Next question is sixth question. Complete the word chain of verbs. Verbs मतलब word के पहले क्या लगाना है आपको? To. Word के पहले क्या लगाओगे आप? To thanked. अभी D से to drink. To तो पहले हम लोग नंबर 1 वर्ड लिखेंगे. क्या है वर्ड? thanked. Yes. D के बाद में क्या यहाँ पे एरो दिया है उन्होंने? No. क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? कॉमा दिया है. तो we will put here what? Comma. What will we put? Thank के बाद में what we will write? D से to drink. K से to kill. L से to laugh. LAUGH laugh. How many words? 1, 2, 3. We have also made 1, 2, 3, 4. One more word we have to make. H से to hide. To alright, to have भी लिख सकते हैं. I want to have गोलगप्पे. तो आप उसको have लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो? Yes. What is गोलगप्पा by the way? Very nice. You know that. I'm proud to know that you know it. Alright. A2. Do as directed. Yes. आप एग्जाम में भी कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 A. ये लिखने की जरूरत है क्या? Do as directed ये सब? No, this is not your work. Question number 2 A2. Make sentence of your own to show the difference in the word your as homophone. Homophone बोला है. मैंने क्या बोला? फोन पे 2 जन बात करते हैं. फोन पे कितने जन बात करते हैं? 2 people. Yes or no? Yes. तो 2 जन अलग अलग रहते हैं क्या? सेम ही आदमी, यहाँ से हेलो, यहाँ से हेलो, अलग अलग जन रहते हैं ना. तो your का 2 अलग अलग वर्ड क्या होगा? एक तो HEAR होगा your और दूसरा होगा YEAR your. Yes or no? Your. Yes. आप क्या बोल रहे थे? HERE her. और ये your है बेटा, वो her है. your है वो HERE your, वो भी चलेगा. HEAR your, YEAR your, दोनों चलेगा. Yes or no? Anyway, if she is telling कि इसका हम लोग को HERE your लिखने का है, which is also 100% right. YEAR your is 200% right. All right everyone. चलो हम लोग कौन सा वर्ड सेलेक्ट करते हैं? your सेलेक्ट करते हैं और her सेलेक्ट करते हैं. All right. आपको ऐसा ऊपर टीचर को लिख के बताने का क्या फ़ोन में 2 जन रहते हैं? No. तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग था. Yes? चलो your and your. First we will write down your. I want to hear the truth. Yes or no? वो वाली पिक्चर देखी कि नहीं? जवान. 100% सच. क्या सुनना है मुझे? 100% सच. कौन सा वाला सीन है बताओ? कौन से सीन में ऐसा हुआ था? हॉस्पिटल सीन में. वेरी गुड. आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ. यस. सेकेंड इज योर. सेकेंड इज वॉट? योर. यस. पहले वाले का हम लोग आंसर दे रहे हैं ना. फर्स्ट यहाँ पे लिखना है आपको. फर्स्ट का फर्स्ट ईयर था. सेकेंड वाला क्या है? ईयर. ओके. दिस ईयर is an important year of my life. You all know why this year is important. Yes, because you all are in 10th standard and any year was not that important as what this year carries importance to you. Yes, because you are going to write down the big exam, board exam, and this is going to decide the first step of your successful life. तो year को अंडरलाइन किया आपने यहाँ पर और यहाँ पे HER year को अंडरलाइन किया. Rewrite. Is it clear? Yes. Second question. Rewrite the following sentence using the present perfect continuous tense. Present perfect Continuous tense. present perfect continuous tense. मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है?
काम अभी भी हो रहा है, काम पहले भी हो रहा था। मेट्रो का खड्डा देखा है ना, खुदा हुआ रहता है रोड पे, ये सुनो, काम पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, अभी बन के हुआ नहीं है। मम्मी पहले भी खाना बना रही थी, अभी भी बना रही है। वो अलग बात है कि पेट में फटाके फूट रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, बट काम अभी भी हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको रूल पता रहना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट में क्या आएगा? हैज, हैव या हैड? हैड आएगा। हैज, हैव क्या आएगा? ऑलराइट, क्योंकि बोला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमेशा याद रखना, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस दो चीज पूछेगा आपको बीन लिखने का। क्या लिखना है? कभी भी दो चीज साथ में पूछेगे आपको लिखना है बीन। क्या लिखने का है? बीन। प्लस कंटिन्यूअस बोला है तो क्या आएगा कंटिन्यूअस के साथ में? ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ आपको? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जब रूल पता रहेगा आंसर आपके मुट्ठी में रहेगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन? यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू आपका सब्जेक्ट है। यस। हैव है। यस। ब्रोकन, ब्रोकन आपका क्या है बताइए? वर्ब। ब्रोकन क्या है आपका? वर्ब। सेवरल स्टीरियोटाइप्स ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो यू हैव है ना, यू के साथ में हैज थोड़ी आएगा, क्वेश्चन में हैव दिया है। यू हैव अभी क्या लिखेंगे? बीन। ब्रेकिंग, ब्रोकन लिखेंगे? नो, ब्रोकन का रूट वर्ड क्या है? ब्रेक। ब्रोकन का रूट वर्ड क्या है? ब्रेक में ing लगाओ, क्या आएगा? यू हैव बीन ब्रेकिंग, यू हैव बीन ब्रेकिंग द क्या बोला है यहाँ पर? सेवरल स्टीरियोटाइप्स। यू हैव बीन ब्रेकिंग सेवरल स्टीरियोटाइप्स। मैंने द बोला, क्या क्वेश्चन में द था? आप भी एक्स्ट्रा कुछ भी लिखोगे? नहीं। You have been breaking several stereotypes. क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका हैव है, बीन है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको ये? Which question was this? Question number 2. Question number 3 के लिए रेडी है? Change the voice. Change the voice of the following sentence beginning with two women, two men, two. The neighbor saw two men getting out of taxi. The neighbor saw two men getting out of taxi. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखना है। पहले तो यहाँ पर देखना है आपको द नेबर क्या है आपका सब्जेक्ट, सॉ क्या है आपका वर्ब, टू मैन गेटिंग आउट ऑफ टैक्सी ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। आपको पता रहेगा हमेशा वॉइस में क्या होता है, वॉइस में आप लिखते हो ऑब्जेक्ट पहला, उसके बाद में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? ये रूल आपका ऐसा रहता है, यस और नो? पहले देखने का क्वेश्चन में द नेबर सॉ, सॉ मतलब कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किस में बदल जाएगा अपना? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस, रूल आपको पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? आपको रूल पता चल गया? आपने रूल लिख दिया ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। टू मैन गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी, मैंने लिख दिया यहाँ पर टू मैन गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी, ये लिख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बात खत्म हुआ। Was या were? Two men getting out of taxi were past participle of saw, see saw seen, see। एक तो पहला रहेगा आपका see, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट टेंस है saw, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? seen। Two men getting out of a taxi, अभी neighbors है, birds, BOURS, birds, बर्ड्स बोलो, बर्ड्स। सिंगुलर क्या प्लूरल? सर इट इज प्लूरल, तो वॉज या वर? वर क्या रहेगा? वर। टू मेन्स गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी वर क्या आएगा? वर्ब
सीन. पास्ट पार्टिसिपल क्या है आपका? सीन. वर्ड सीन. बाय द नेबर्स. बाय द. इतना क्लियर हुआ आपको? कोई भी पूछेगा आप बता सकते हो कैसे करने का है कन्वर्ट? यस और नो? सबसे पहले आपको क्या लिखने का है? रूल लिखने का है. क्या लिखने का है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट. क्वेश्चन आपने एक बार ही पढ़ लिया, रूल आपने एक बार समझ लिए, काम आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा. फिर आपने यहाँ पर लिख दिया 2 men गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी. ये सब्जेक्ट था आपका? क्या ऑब्जेक्ट था आपका? ऑब्जेक्ट. क्या था ये? पहला ऑब्जेक्ट लिखने का है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है. वॉज और वेयर में नेबर्स है, प्लूरल है, तो वॉज या वेयर? वेयर. यस. पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सी, सॉ या सीन? सीन. बाय द नेबर्स. बाय द. इतना क्लियर है? कोई डाउट है? सिंपल. लेट्स मूव ऑन. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं. आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डू एज डायरेक्टेड. बी. ऑलराइट. बी में पहला क्वेश्चन बोला है यूज द वर्ड स्माइल्स इन अ सेंटेंस एज नाउन एंड वर्ब. अब ये स्माइल्स जो है, स्माइल्स मतलब हंसी. एक बार आपको नाउन फॉर्म में यूज करना है, एक बार आपको वर्ब फॉर्म में यूज करना है. नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म. नाउन फॉर्म. यस. नाउ यू टेल मी, स्माइल्स का वर्ब फॉर्म रहेगा टू स्माइल. टू स्माइल. और यहाँ पे क्या रहेगा? नाउन फॉर्म द स्माइल. और तुम लोग बोले कि सर आप तो गलत बता रहे हो, ऐस तो आपने किधर लिखा ही नहीं. नहीं, ये तो क्वेश्चन दिया है आपको. वो लोग स्माइलिंग दे देंगे वर्ड आपको, तो आप थोड़ी स्माइलिंग लिखते बैठोगे सेंटेंस में. आपको पता लगना चाहिए कि नाउन फॉर्म क्या होता है स्माइलिंग का. द स्माइल. नाउन फॉर्म ढूंढने के लिए हमेशा द लगाने का. क्या लगाने का? और वर्ब ढूंढने के लिए हमेशा टू. एडजेक्टिव बोलेंगे तो टू बी. एडजेक्टिव के लिए क्या लगाने का? और अगर एडवर्ब बोलेंगे तो एल वाई. एडवर्ब बोलेंगे तो वर्ड के बाद में, वर्ड के. और ये तीनों चीज वर्ड के पहले लगाना है आपको. ये समझ में आ गया आपको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. मुझे बताइए द स्माइल. द स्माइल के ऊपर एक सेंटेंस बोलो फटाक से. यस, द स्माइल. It was the smile of innocent child that won my heart. उस बच्चे की वो मुस्कुराहट थी जिसने मेरे दिल को जीत लिया. It was the smile of my mother that made my day special. Understood? It was the smile of my mother that made my result special. Yes or no? It was the smile. The smile आपने यूज कर लिया. नाउन फॉर्म बन गया आपका स्माइल. मुझे बताओ नाउन फॉर्म में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सा नाउन है? रॉन्ग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फीलिंग है ना स्माइल? स्माइल क्या है? प्रॉपर कैसे बोल रहे हो? कोई जगह का नाम है? कोई इंसान का नाम है? नहीं. कोई जानवर का नाम है स्माइल? नो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, कंडीशन, उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट. इमोशन है. यस और नो? इट वॉज द स्माइल. It was a smile of my mother that made my day special. तुम लोगों ने देखा रहेगा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब चीज़ में मदर को बहुत यूज़ किया जाता है आंसर बनाने में या आंसर बोलने में. मदर इज़ अ इमोशनल वर्ड. अंडरस्टूड? और मार्क्स आपको इमोशन से मिलने वाले हैं, तो जहाँ आप मम्मी को घुसा सकते हो वहाँ पे घुसा देने का बिंदास. अंडरस्टूड और नॉट? बिकॉज उससे आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स. इट वॉज द स्माइल ऑफ माई मदर दैट मेड माई डे स्पेशल. येस और नो? येस. To smile. To smile means you're giving an order, action. Yes or no? Yes. I have to smile. Yeah, she have to smile. Also on lame joke. She have to smile. Yeah, she has to smile. She have or she has? Has. She has to purposely smile. On
She has to purposely smile on my lame joke. ये सोनो बकवास जोक था पर उसको फिर भी हंसना पड़ा मेरा दिल रखने के लिए. ये सोनो तो she has to purposely smile. अंडरलाइन करने का है स्माइल. स्माइल नाउन में भी हो गया सर, स्माइल वर्ब में भी हो गया सर. थैंक यू. अंडरस्टूड यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? चलो नेक्स्ट चीज, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए. पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट फंक्शन. कुड यू हैव डन इट? कुड यू हैव डन इट? ये फर्स्ट का आंसर है. चलो अपन सेकंड का आंसर लिखते हैं. कुड यू हैव डन इट? कुड, यस और नो? बताइए मुझे. कुड, कुड काय के लिए है? कुड यू हैव डन इट, क्या तुम ये कर सकते थे? एबिलिटी आएगा, पॉसिबिलिटी आएगा, क्या आएगा? बोलो चिल्ला के. वेरी गुड. कुड स्टैंड्स फॉर एबिलिटी. Could stands for ability. Can be stands for ability. Could stands for ability. क्लियर हुआ आपको? ये पूरा ग्रामर समझ में आया? एकदम इजी था. आई होप आपको वीडियो कंप्लीटली इजी लगा रहेगा और वीडियो पूरा आपने देखा. उस चीज़ के लिए मैं आपको डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहता हूँ. मेक श्योर करना आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने से ही मेरा चैनल ग्रो होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डेफिनेटली आपके लिए लेते आता रहूँगा. येस, एंड विद दैट I want to thank you from the depth of my heart and I wish you all the best for your future achievements and success. Until we meet, all the best.